ٹو صبح سویرے پاکستان. ہم بات کریں گے خواتین آج زندگی کی کسی بھی شعبے میں مردوں سے کم تو نہیں ہیں. وہ مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں مگر معاوضے کی اگر بات کی جائے تو معاوضے کی دوڑ میں وہ آج بھی مردوں سے کہیں پیچھے ہیں اور یہ ایک رپورٹ میں بات سامنے آئی ہے. ہاں جی، اور اس رپورٹ کے مطابق معاوضے کے حساب سے خواتین اپنے شوہروں کے میں کم کماتی ہیں. حیران کن طور پر نارڈک خطے کے ممالک میں بھی بیویوں کی کمائی اپنے شوہروں سے کم ہے، جس میں ہم دیکھ لیں تو سویڈن آ جاتا ہے، ہم دیکھ لیں تو ناروے بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اور فن لینڈ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. نارڈک خطہ یورپی ممالک مطلب کہ فن لینڈ، ڈنمارک ہے، اس کے اندر آئس لینڈ ہے، یہ سارے ہیں. تو جو خواتین کی آمدنی یا انہیں اقتصادی مواقع فراہم کرنے میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، پھر بھی ہم یہ فرق دیکھ رہے ہیں. بالکل. اچھا حمزہ، اس تحقیق کے دوران ماہرین نے یورپ اور ایشیا سمیت دیگر خطوں کے 45 ممالک کے لاکھوں گھرانوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا. انہوں نے اینالائز کیا اور اس سے پتہ لگا کہ کمائی کے لحاظ سے صنف تفریق تمام امیر بھی اور غریب ممالک دونوں میں ہی موجود ہے، اور ایک ہی جیسے کام کا معاوضہ مرد کو زیادہ مل رہا ہے اور عورت کو کم مل رہا ہے. اچھا، اچھی بات لیکن یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال میں مرد و خواتین کے کمائی کے فرق میں کچھ بہتری آئی ہے اور اب خواتین ماضی کے مقابلے میں 20% زیادہ کما رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی میاں اور بیوی کی کمائی میں فرق بہرحال موجود ہے. اچھا حمزہ، دنیا کے بہت سے ممالک میں ایک جیسے کام کے لیے ایک جیسا معاوضہ دینے کی تحریکیں کیونکہ چل رہی ہیں اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. بزنس ویمن شاد ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، گڈ مارننگ. شاد بیگم، خواتین اپنے شوہروں سے کم کیوں کماتی ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب تو ہم نے دیکھا کہ امیر اور غریب ممالک کے حوالے سے جو ڈیٹا انالائز کیا گیا ایک رپورٹ میں، اس میں بھی یہ چیز ہمیں سامنے نظر آئی ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل، اس کے بہت ساری ریزنز ہیں. ایک ریزن تو اس کا جو بنیادی ہے وہ جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں، لیبر پالیسیز ہیں جو کہ ڈسکریمنیٹ کرتی ہیں خواتین کو انکم کے جو سیلری ہے، معاوضہ ہے، اس حوالے سے. بہت ساری جو پالیسیز ہیں اگر آپ دیکھیں نا، صرف اس سیکٹر میں نہیں اور بہت سارے سیکٹرز میں جو پالیسیز ہیں وہ جینڈر بیس کو اگر ہم دیکھیں وہ ڈسکریمنیٹ کرتی ہیں، خواتین کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتی ہیں، مردوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتی ہیں. ایک بنیادی ریزن یہ ہے. دوسرا ایک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یہ رپورٹ اٹھائیں یا اس کے علاوہ بہت ساری اور رپورٹس اٹھائیں، خواتین کا بہت سارا کام جو ہے وہ بلا معاوضہ ہے. اس کو کوئی تنخواہ، کوئی مالی کمپنسیشن اس کو ملتی نہیں ہے. اس میں وہ کام آ جاتے ہیں، لائک فار ایگزامپل ایک تو گھر کے کام، اس پہ میں بعد میں آؤں گی، لیکن اگر آپ دیکھیں نا ایگریکلچر سیکٹر ہے، لائف اسٹاک مینجمنٹ ہے، دستکاری ہے، ہینڈ امبرائڈری ہے، یا جو ڈومیسٹک ورکر خواتین زیادہ تر ہمارے ملک کی مثال لے لیں، بہت ساری خواتین گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں لیکن اس کے معاوضے کم ملتے ہیں، جس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو شاید چھپانا، اس کو ترخانا آسان کام ہے کیونکہ وہ اس کے خلاف نہیں جائے گی، بات نہیں کرے گی، اس کو کوئی نوکری اور نہیں ملے گی، تو اس کو ذرا وہ چھپانا آسان ہے. دوسرا، اب خواتین کی یونینز دیکھیں، ہمارے ہاں ایون بہت سارے ملکوں میں خواتین کی یونینز نہیں ہوتے، مردوں کے آپ دیکھیں ان کی یونینز ہوتے ہیں، وہ انفلوئنس کرتے ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں، ساری چیزیں. سو یہ ساری چیزیں. اور دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اوورآل شعبوں کے اندر بہت سارے شعبے آج بھی جہاں پہ پیسے زیادہ کمائے جا سکتے ہیں وہاں پہ سمجھا جاتا ہے مرد ایفیشینٹلی ڈلیور کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں عورت چھٹی کرے گی، بچوں کی چھٹی لے گی، بیمار پڑے گی، اس طرح کے، اور اچھا وہ ان گھنٹوں میں کام کرے گی کہ جو لائک ارلی فارغ ہو جائے، گھر چلی جائے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسٹل یہی کہتا ہے کہ عورت کو کم ویجز آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے خلاف آپ اس لیے بات زیادہ نہیں کر سکتے کہ بہت سارے ممالک میں ہمارے پاس اس طرح کا کوئی قانونی بیک اپ موجود نہیں ہے جس پہ ہم لیگلی بات کر سکیں. ٹھیک ہے شاد بیگم، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ مسئلہ یہاں پر بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو آفر کیا تھا، آپ نے ایکسیپٹ کیوں کیا؟ جب ہم نے آفر کیا تھا تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی ویج کم ہے مرد کی نسبت، اب تو آپ نے اوکے کر لیا تھا، تو آج آپ کس لیے آواز اٹھا رہی ہیں؟ اس پرابلم کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ بھی بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ خواتین کے رائٹس کو ایکسپلائٹ کرنا نسبتاً لوگوں کو آسان لگتا ہے، کہ ایک تو اس کو چپ کرانا آسان ہے کیونکہ خاتون جو ہے وہ آگے لیگل ان چیزوں میں کمپلیکیشنز میں نہیں پڑے گی. تو اس میں پھر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اور ظاہر ہے پھر ہر کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، چاہے وہ چھوٹی کمپنی ہو چاہے وہ بڑی کمپنی ہو. تو وہ، اور یہ خواتین چونکہ اگر آپ اس میں دوسری اس کی جو شکل ہے وہ یہ دیکھیں کہ خواتین کو نسبتاً جابز کم ملتی ہیں کیونکہ آلریڈی ایک سوچ ہوتی ہے کہ خواتین شاید ایفیشینٹ نہیں ہیں،
अच्छा, दूसरा ये कि ख़वातीन कम पढ़ी लिखी भी होती है। हमारा एक ये भी मसला है कि ख़वातीन चूँकि कम पढ़ी लिखी होती है, मर्दों को चूँकि पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलता है, इसलिए उनको जॉब्स भी अच्छी ऑफ़र होती है। सही। और दूसरा, मर्द जो होते हैं लीगली थोड़े से अवेयर भी होते हैं। हमारा ये भी मसला है कि बहुत सारी ख़वातीन को लेबर लॉज़ का या जी, इन जी। चीज़ों का भी पता नहीं होता, या अगर कोई एक्सपेक्ट करता है तो कैसे कानून के साथ रुजू किया जाए, उसमें भी अगर देखें ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की जॉब कर रही है, तो शी विल प्रेफर टू कंटिन्यू जॉब ऑन द सेम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इंस्टेड कि वो अदालत पे जाके वो करे, क्योंकि बहुत सारी और ख़वातीन को शायद अदालत जाने में, थाने जाने में इस चीज़ को लीगली परस्यू करना मुश्किल हो जाता है। सो वो जो एक्सप्लॉइट करने का वो होता है वो कंटिन्यू रहता है। इसमें ये है कि ये बदलना शायद अभी भी बहुत लॉन्ग टर्म में हो, लेकिन जब तक क्लियर पॉलिसीज़ नहीं होंगी और ख़वातीन में ये अवेयरनेस नहीं होगी कि वो इक्वल पे के लिए अपने राइट्स के लिए बात कर सकती है, लेकिन हमें इक्वली ख़वातीन की एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि शाद वो बेगम साहिबा, एक एक ये भी रीज़न कही जाती है ख़वातीन के उनके मुआवजे कम हैं इस वजह से क्योंकि वो उनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और वो ऐसी नौकरी की तलाश में होती हैं जहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हों। तो आप समझते हैं कि ये रीज़न ठीक है? ये रीज़न काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा। क्योंकि मैं खुद ख़वातीन के साथ काम करती हूँ। ख़वातीन प्रेफर करती हैं कि वो दिन के वक़्त काम करें, और दिन के वक़्त के काम में भी उनकी कोशिश होती है कि वो जो टाइम होते हैं, खाने पकाने के टाइम होते हैं, बच्चों के स्कूल के वापस आने के टाइम होते हैं, ये टाइम बड़े क्रिटिकल होते हैं ख़वातीन के लिए। अच्छा, इस दौरान अगर घर में कोई बीमार है तो चाहे वो फैमिली में जिस भी, क्योंकि अगर आप देखें ना, हमारी जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी समझी जाती है कि वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखे। शाद बेगम, अब हमने वे फॉरवर्ड हमने करना है ना कि वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस बारे हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। एक तो सबसे पहले हमें ये रवैया ख़त्म करना है कि ख़वातीन जो है वो किस शोबे में जा सकती है, किस शोबे में नहीं जा सकती, क्योंकि सबसे पहली जो आगाज़ है वो यहाँ से होती है कि जो प्रॉफिटेबल या अच्छे शोबे होते हैं वहाँ पे ही औरत को एक तरह से रोक दिया जाता है, वो मर्दों के लिए ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा ये है कि आपने चूँकि मगरबी ममालिक की बात की है, वहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं, क़वानीन होते हैं जिसकी बुनियाद पे ख़वातीन थोड़ा सा रिलीफ ले सकती हैं। हमारे जैसे ममालिक में अभी बहुत कमी है इस हवाले से क़वानीन की और पॉलिसीज़ के, कि वो ना सिर्फ जो इक्वल पे है उस पर वो करें, लेकिन वो साथ में जो ख़वातीन की इश्यूज़ है उसको भी एड्रेस कर दे, क्योंकि जो बच्चों की पैदाइश की जो छुट्टी है उस पर उसको रिलीफ मिले, पेड वर्क मिले। इसके अलावा जो बीमारी के दिन है या फैमिली के साथ दिन गुजारने की जो ज़रूरियात है उसमें पहले उसको मिले। दूसरा ये कि जो ड्यूटी हार्स हैं उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की जाए, क्यों कीपिंग इन माइंड जो ख़वातीन का रोल है। और इसके अलावा जो है ख़वातीन को इनकरेज किया जाए कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें, अपने स्किल्स इन्हांस करें। अभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारी ख़वातीन अब यहाँ पे भी बड़ा क्रिटिकली जो है वो अपने स्किल्स को देखें। ये सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह तो फिर ख़वातीन का जो बिला मुआवजा का काम है वो इतने साल शायद ना ले, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2060 तक जो है तकरीबन ये जो गैप है शायद ये फिल ना हो सके। बिल्कुल ठीक है। शाद बेगम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, बड़ा अहम मामला है ये कि क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग कुछ सिचुएशन हो जाती है। आमतौर पर अगर हम तरक्की पजीर ममालिक के अंदर देखें तो ये हमला होता है कि शायद इसको बहुत मजबूरी है तो काम करना पड़ रहा है, तो फिर अगर हम कम भी ऑफ़र कर रहे होंगे सैलरी तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। मजबूरी को कमज़ोरी समझ लिया जाता है और फिर वो जो है इस तरह से जो उनके वेजेस वगैरह हैं और जो उनकी भी होती है सैलरीज वगैरह उनको कम किया जाता है, और वो मजबूरी होती भी है किसी हद तक, और फिर इसी वजह से ख़वातीन भी काम करने पर मजबूर होती हैं। फिर कवानीन की पासदारी उस तरह से नहीं होती, अमल दारी उस तरह से नहीं होती और ख़वातीन को इस प्रॉब्लम का सामना रहता है। और उन्होंने एक बताया ना कि इसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए ख़वातीन को, ख़ास तौर पे क्योंकि उनके ऊपर डबल काम होता है, उनकी घर की जिम्मेदारी भी होती है, तो उस हवाले से रिलैक्सेशन देना उनके वर्किंग आवर्स में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ें और अहम मामला है उस पर बात करेंगे। रेहाम खान ने झूठे इल्ज़ामात लगाने पर जुल्फ़ी बुखारी से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लिया। बरतानवी अदालत के हुक्म के बाद रेहाम खान ने मुआफ़ीनामा और वीडियो बयान सोशल मीडिया पर जारी किया। अच्छा, अपने वीडियो बयान में रेहाम खान ने ना सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी से माफ़ी मांग ली बल्कि हरजाना भरने की भी हामी बढ़ी। हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना, क्या कहा जाए इस मामले के ऊपर। लेकिन खैर हम अगर ये देखें कि कानून कितना मजबूत है, वहाँ पर अदालतें कितनी मजबूत हैं कि फ़ैसला हुआ, मुआफ़ी मांगना पड़ी, ट्वीट करना पड़ी, बयान रिकॉर्ड करना पड़ा, वही पढ़ना पड़ा जो जुल्फ़ी बुखारी साहब चाहते थे और कहना पड़ा। लेकिन इसका दूसरा
जो रुख है वो हमने देखना है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो चाहते हैं बयान कर देते हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो डेफेमेशन के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में उस तरह से आगे क्यों नहीं चल पाते हैं, क्यों सियासतदान खुद ही परसू नहीं कर रहे होते और फिर वो सजाएं नहीं मिल रही होती? हमजा, अगर देखा जाए तो उन्होंने माफ़ी तो मांगी, साथ साथ उन्होंने हरजाना भी भरने का कहा कि वो भी भरेंगे। ये कोई दिल से तो वो नहीं कर रही कि दरिया दिली से, क्योंकि वहाँ की अदालत ने बोल दिया अब आपको कि उन्होंने करना पड़ा है। तो यहाँ पर ऐसा मामला क्यों नहीं है और क्या होना चाहिए, बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अगर हम देखें ये कानून है कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, इतना कुछ करना पड़ा, पूरी दुनिया के सामने जो है एक सुबकी उठाना पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं जिसका जो दिल करता है वो पंक्चर्स की बात हो या कोई भी मामलात हो जाते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर उस तरह से सज़ाएं क्यों नहीं मिल रही होती, परसू क्यों नहीं हम केसेस को कर रहे होते? जी शुक्रिया। देखिए, आपके यहाँ भी कानून मौजूद है, सिर्फ अमल दरामद नहीं होता, और ये अदालतों का भी काम है और हुकूमतों का भी काम है कि उस कानून को बेहतर करें। 2002 में हतक इज़्ज़त का कानून आया था जी, इससे पहले भी था, लेकिन 2002 में इसको कुछ और इम्प्रूव किया गया था और अब भी इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। असल में जब अगर हुकूमतों की नीयत हो चीज़ों को बेहतर करने की तो की जा सकती है। दूसरे ये कि अदालतों को भी ये देखना होगा कि जब इस तरह की हतक इज़्ज़त का कोई केस उनके सामने आता है तो उन्हें कितने अरसे में उसको निपटाना चाहिए। कई केसेस हैं पिछले चंद सालों में जो केसेस फाइल हुए हैं। अगर मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब का इमरान खान के ऊपर केस है, इमरान खान ने नजम सेठी ने इमरान खान के ऊपर केस किया था, और भी कई केसेस अगर आप उठा के देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि वो बहुत जल्दी उसके जवाब आ सकते थे। अगर अदालतें चाहती बहुत जल्दी फैसले हो सकते थे। सजाओं को बेहतर करें, जुर्माने बेहतर करें, लेकिन हतक इज़्ज़त का कानून आपके यहाँ भी मौजूद है। सिर्फ यही मसला है कि आपके यहाँ अमल दरामद चीज़ों पे नहीं होता और दूसरी जगहों पे अमल दरामद हो जाता है। वहाँ का कानून जो है वो सख्त भी है और वहाँ कानून के मुताबिक जो है वो सजाएं भी होती हैं, जुर्माने भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ से, इस केस से भी सबक लेना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इमरान खान भी एक ज़माने में उन्होंने इंग्लैंड के जो क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे, इयान बोथम, उनके खिलाफ केस किया था और वो केस जीते थे इमरान खान। सही। अच्छा, लेकिन मज़हर अब्बास साहब, अगर हम देखें, हमने इस फेक न्यूज़ को, पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, या झूठे इल्ज़ामात वगैरह की जो बुछाड़ होती है, उसको रोकने के लिए हुकूमत को और दीगर इदारों को क्या इक़दामात करने चाहिए? क्योंकि कानून तो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सिर्फ क्या ये अदालतों की ही जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए, फेक न्यूज़ तो एक बिल्कुल दूसरा मौजूद आ जाता है। फेक न्यूज़ का हतक इज़्ज़त से ताल्लुक नहीं होता, हतक इज़्ज़त का कानून दूसरा होता है। फेक न्यूज़ को बेहतर बनाने के लिए करें, अब हुकूमत का मसला ये होता है कि वो फेक न्यूज़ की आड़ में पूरे मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। फेक न्यूज़, पहले तो फेक न्यूज़ को डिफाइन करें, फेक न्यूज़ क्या होता है? कोई बयान फेक न्यूज़ होता है, कोई ज़हनी इर्तिका फेक न्यूज़ होती है, और फेक न्यूज़ के मकासद क्या होते हैं। तो चीज़ों को बैठ के रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। एकदम आपको एक कानून ले आएंगे जिस तरह इन्होंने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब उसमें जिन कवानीन को वो ख़त्म करके अथॉरिटी बनाना चाह रहे थे, उसका फेक न्यूज़ से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। तो असल चीज़ ये कि हुकूमत के हद तक संजीदा है, इस पर संजीदगी दिखानी चाहिए, बात करनी चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जाए। ठीक है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, हम अखलाकी पस्ती का भी शिकार हैं कि हमें शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, कि हम अदालतों में उस तरह से परसू भी नहीं करते कि इसको कोई हमारे बारे में बयान देते हैं, हम उसके बारे में बयान दे देते हैं कि तुमने भी तो ये किया है, तुमने भी तो फलां किया है, और दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा होता सिवाय तकरीरों के। तो क्या कोई अखलाकी पस्ती भी है या हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम कहते हैं खैर है, कुछ नहीं होता? देखिए, ये तो ओवरऑल फिर माशरे की बात होती है ना। आपके माशरे में जो है वो जो आदमी ऊँची आवाज़ से बात करता है उसकी आवाज़ सुनी जाती है, जो आदमी धीमी आवाज़ से बात करता है उसकी बात नहीं सुनी जाती। जो आदमी दलील से गुफ्तगू करता है वो हमारी समझ में नहीं आती, जो आदमी गुस्से में गुफ्तगू करता है वो हमारी समझ में आ जाती है। तो ये हमारा ओवरऑल माशरे का मसला है। और जाहिर है जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको इस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप को वो दावा करते हैं कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं।
اور عوام کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ عوام کے اندر رہ کے کام کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو عوام سے دور نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. سبسستان سے آپ بات کر رہے تھے. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.